Hi everyone, a very good evening to all of you. Hello my dear friends, a very good evening and welcome back once again on the YouTube channel, your favorite YouTube channel IPMAT Wallah. So friends, today we are going to continue with the series of sessions that we have started few weeks back, and the topic that we are going to take up today, the input output sequences. Now this I would say by far, like अभी तक हमने जो भी topics किए हैं उनमें से सबसे difficult topic है, right? So this is a very good thing, like a very good topic that we are going to take up today. It is difficult, a little challenging, and I would say that if you have a proper command on this type of questions, then this can become a very scoring topic for all of you, right? So friends, a very warm welcome, good evening to all of you once again in this session. I am Gaurav Gupta and I am one of the mentors of LR and data interpretation with IPMAT Wallah, right? And the students who are already there in this session, they would have attended some sessions earlier. Hi Ruchi, Ashi, can you please confirm if I'm clearly visible and audible so that we can kickstart this session? All of you, those who are there in this session, can you please confirm if I'm clearly visible and audible to each and every one of you? Just write yes in the chat box if everything is fine so that we can start this session. Come on, quickly. All right, perfect. Thank you, Sneha. Thank you for confirming. So friends, जैसा अभी मैं बता रहा था आपको input output sequences, this is slightly difficult, a little challenging, but scoring topic if you gain a command over it. Now, why scoring? Because generally हमने देखा है input output sequence का question जब भी आता है एग्जाम में तो वो एक अकेला क्वेश्चन नहीं आता. So it comes in a set of 3 or 4 questions in general. अगर आता है तो 3-4 questions के सेट में आता है, एंड आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, क्या पैटर्न यूज हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट पैटर्न all the questions can be answered very easily. So the most important thing, the primary thing is to determine the pattern that is used in this input output sequence. अब गाइज चैप्टर इनपुट आउटपुट सीक्वेंस है, बट होता क्या है, कितने मार्क्स का आता है सर? आशी अभी मैंने बताया ना. सो आशी देख, एक सिंपल सी बात समझो. ये जो आप एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो, आईपीमैट इंदौर, आईपीमैट रोहतक, जिपमैट और जो भी एंट्रेंस टेस्ट टारगेट कर रहे हो, तो हर एक चैप्टर की कोई फिक्स्ड वेटेज नहीं होती. ओके, सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. So what we can do is we can just rely on the pattern of last few years, right? But we cannot completely depend on that. We cannot like close our eyes and completely depend on the pattern of the last year कि भाई last year अगर किसी टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए थे तो इस बार भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है. सो ओवर द ट्रेंड, लाइक ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स जो भी हमने ट्रेंड देखा है, हम सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये पैटर्न ये पॉसिबल हो सकता है, राइट? ठीक है. ओके, सो इफ यू आर आस्किंग कि सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो नोबडी कैन आंसर दिस, राइट? सो आई कैन से यस, वी हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस, राइट? बस प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही हम अपनी प्रिपरेशन प्लान करेंगे. ऑलराइट, ठीक है ना सर? विल I take IPMAT फाउंडेशन और IPMAT प्रो? दोस्त, IPMAT फाउंडेशन में तो सिर्फ फाउंडेशन की क्लासेस होंगी ना, तो IPMAT प्रो विल बी अ बेटर बैच इफ यू आर आस्किंग मी. ठीक है. ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में आता है. ठीक है. अब फर्क नहीं पड़ता ना, LRDI तो एक सिंगल सेक्शन होता है IPMAT रोहतक और जिपमैट एग्जाम में, तो ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग में हो या डेटा इंटरप्रिटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यस, सिंस यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी, so I'll tell you that this topic belongs to logical reasoning. Done. Now today what we are going to do is we are going to look at the basic concepts of input output sequences and we'll be solving different types of questions on input output. We'll be taking up one entire set of questions, but पहले हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट का होता क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है,
एंड अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ जाता है देन हमें वो जो मैंने आपको बताया था ना पैटर्न, पैटर्न जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक concepts of input output. Now first of all we need to see what are the different types of questions that may come in input output sequences. So common types and way to solve those questions. Now first type of question is based on numbers, right? Now isse bhi pehle if I would talk about the basics of this topic, question ka format kya hota hai, so let us understand the format of the question. So assume that there is a machine, right, which when given an input it generates a certain output. ठीक है ना? इस तरीके से इस चीज को समझते हैं कि भाई एक मशीन है, मशीन को मैं कुछ इनपुट दूंगा और वो एक मुझे आउटपुट जनरेट करके दे देगा. ओके, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मशीन, लेट्स से अगर हम एग्जांपल्स के साथ करते हैं तो लेट्स से मैंने इनपुट दिया 2 और मशीन ने मुझे आउटपुट दे दिया 4. लेट्स से मैंने इनपुट दिया 9, मशीन ने आउटपुट दे दिया 81. लेट्स से मैंने इनपुट दिया 5 एंड मशीन ने आउटपुट जनरेट कर दिया 25. So these are certain examples that I am giving you. So can you identify the pattern कि machine कर क्या रही है? Come on, all of you. So tell me what actually this particular machine is doing. So अगर मैंने इनपुट दिया 2, आउटपुट 4 आ गया, इनपुट 9 उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 81 आ गया, इनपुट इज 5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 25 आ गया. So what basically this machine is doing? All right. Anyone else would like to tell me what this machine is doing? Good. स्क्वेयर कर रही है. सर रूट का स्क्वेयर, ठीक है चलो ऐसा भी बोल सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या कर रही है? स्क्वेयर कर रही है, ठीक है ना? तो अगर मैं इनपुट देता हूं इस मशीन को 8, सो व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ दिस मशीन? इस मशीन का आउटपुट क्या होगा अगर मैंने इनपुट दिया है 8? Come on, tell me quickly. Absolutely, Harsh. Good. रुचि, नाइस, वेरी गुड, परफेक्ट. सो 2 स्टूडेंट्स का आंसर अभी तक आ चुका है. देखते हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स का आने लग गया है आंसर. तो सिंस वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड दैट द पर्पस ऑफ दिस मशीन इज स्क्वेयरिंग द गिवन इनपुट, तो जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं उसको वो स्क्वेयर कर रही है. तो 8 का स्क्वेयर हो गया 64. ठीक है, राइट? अब यहां पे मैंने क्या किया है, अंडरस्टैंड, मैंने इंडिविजुअल इनपुट्स दिए हैं. ठीक है, सो मैंने 2 इनपुट दिया, देन 9, देन 5 एंड फाइनली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 8 के लिए, राइट? तो बेसिक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है यहाँ पे कि हो क्या रहा है. ठीक है, नाउ इन आर क्वेश्चंस जो भी हम इनपुट देंगे दैट विल नॉट बी अ सिंगल, लेट्स से दैट विल नॉट बी अ सिंगल नंबर, वो एक सिंगल नंबर नहीं होगा. जो भी हम इनपुट दे रहे हैं दैट विल बी अ ग्रुप ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो लेट्स से मैं बताता हूं आपको कि इनपुट जो मैंने दिया है, द इनपुट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स like 4, 7, 2, 1 and 9. So this is the input that is given to this machine. अब ये मशीन क्या करेगी, इस इनपुट को कुछ ना कुछ तरीके से ट्रीट करेगी, राइट, प्रोसेस करेगी एंड मुझे एक आउटपुट जनरेट करके दे देगी. तो आपको डिटरमाइन करना है कि इस मशीन ने किया क्या है. सो व्हाट दिस मशीन हैज डन, दिस इज वन थिंग that you will have to determine. ठीक है, तो let's say इस मशीन को मैंने ये वाला इनपुट दिया and this machine used some steps, कुछ स्टेप्स को यूज करके इसने एक आउटपुट जनरेट कर दिया, right? So I am writing all these steps one by one and then I'll write the final output. तो आराम से समझते हैं. So let's say step 1 is, I'm writing the step 1. So step 1 is 1, 4, 7, 2, 9. Then step 2 is 1, 2, 4,
7 9 एंड इट सेज दैट स्टेप 2, या फिर एक और नंबर लिख देते हैं, वेट, रुको मैं थोड़ा सा इनपुट चेंज कर रहा हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो मैं थोड़ा सा यहां पे चेंजेस कर रहा हूं। सो लेट्स से दिस इज 9 एंड दिस इज 4। ओके, सो दिस इज द इनपुट। दोबारा से एक बार देखते हैं। हाँ, सो स्टेप 1 इज 1 9 7 2 4। स्टेप 2 is 1 2 9 7 4. Step 3 is 1 2 4 9 7, and step 4 is 1 2 4 7 9, and step 4 is the final output. Okay, now analyze this problem that is there in front of you. अंडरस्टैंड करो कि एक एक करके स्टेप में हो क्या रहा है, इस चीज को ऑब्जर्व करो। So you'll have to observe two things. With a given input, this is the output. So what has happened? मैंने एक इनपुट दिया, कुछ नंबर्स इनपुट थे एंड ये आउटपुट मुझे मिल गया। तो इन नंबर्स को किस तरीके से ट्रीट किया गया है कि ये आउटपुट जनरेट हो गया। ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड फाइनली, एंड ये जो स्टेप्स हैं, एक पर्टिकुलर आउटपुट, इस आउटपुट को ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सो व्हाट आई हैव डन, राइट, एंड how the output is generated. So we'll have to answer to these two questions. हमें दो questions को answer करना है, right? So I've already started getting the answers. Ascending order में हो रहा है increase in number. Ascending order में भी. All right, good. So Sneha, Ruchi and Sahil, absolutely correct. You have determined what is being happening here. Okay. तो input मैंने दिया. This is the string of numbers as input. एंड आउटपुट मुझे क्या मिला, 1 2 4 7 9। तो बेसिकली जो भी नंबर्स को मैंने इनपुट किया था वो सारे के सारे नंबर्स मुझे आउटपुट में मिल गए हैं, बट ऑल दोज नंबर्स इन द इनपुट आर नाउ अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो व्हाट हैज बीन डन, द नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सो नंबर्स को मैंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो आई हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट हैज हैपेंड इन दिस मशीन। अब हाउ दिस मशीन हैज जनरेटेड दिस आउटपुट, क्या स्टेप्स लिए हैं, हर एक स्टेप में किया क्या है, ये भी डिटरमाइन करना है, राइट। सो कैन यू टेल मी फर्दर, स्नेहा, रुचि एंड साहिल, सो व्हाट हैज हैपेंड हमने देख लिया, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमने इन नंबर्स को किस तरीके से प्रोसेस किया है, किस तरीके से ट्रीट किया है, सो दैट वी हैव ऑब्टेन्ड दिस फाइनल आउटपुट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हमने क्या किया, और हमने नहीं किया, इस मशीन ने किया है, जो भी किया है। सो मशीन ने क्या किया, ये जितने भी नंबर्स थे इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढा। सो इट लुक फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर हियर इज 1, राइट। सो इनपुट के जो नंबर्स थे इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 को इसने ढूंढा एंड 1 को सबसे आगे रख दिया, राइट। सो इट लुक्ड फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर को उठा के सबसे आगे रख दिया, एंड अब मैंने क्या किया है, 1 को सबसे आगे रखा तो आई नीड सम स्पेस फॉर 1, तो 1 के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बाकी सारे नंबर्स राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। ओके, सो 1 सबसे आगे आ गया 1 के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए, और सारे जो भी नंबर्स थे वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। सो दैट इज हाउ आई हैव गॉट 1 एज द स्मॉलेस्ट नंबर एट द फर्स्ट प्लेस। फिर क्या किया इसने, यहां से अनदर स्मॉलर नंबर ढूंढा, राइट। सो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2। सो 2 को उठा के इसने यहां पे रख दिया, एंड 2 के लिए स्पेस क्रिएट करना था, बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट 4 को उठा के आगे रख दिया, बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट इज 7 को उठा के आगे रख दिया, बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, राइट। ठीक है, सो एक एक करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, ठीक है, वेरी गुड, एक एक करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, बाकी सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया, राइट।
So the process that is used is shifting. We can say that हमने क्या किया, उस नंबर का स्पेस क्रिएट करने के लिए सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया. एक और तरीका हो सकता था, राइट? सो मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल लिखता हूं. यहां पे इधर जो स्पेस है, यही सारे नंबर्स कंसीडर करते हैं. 97214. So let's say the input is 97214. This is the input. अब एक एक करके स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, एंड आपको डिटरमाइन करना है कि हो क्या रहा है दोबारा से. तो स्टेप 1, 17294. This is step 1. Step 2 is 12794. Step 3, 12497. And step 4, 12479. And this is the final output. Okay, now observe this. This is the input and this is the output. So what has happened? Obviously the numbers are once again arranged in increasing order. Increasing order में numbers को arrange किया है, ठीक है, right? But process क्या follow किया है? Can you determine this particular thing? Absolutely, Rishwita. Okay. Yes, Sahil, again increasing order. You are absolutely correct. But the steps are slightly different. Now, Ruchi, are you sure हमने shifting किया है? Check करते हैं रुचि. So 1 को आगे लाने के लिए 9, 7 और 2 को shift करना था, but वो नहीं हुआ. Okay, so observe how we have obtained the desired result. Focus here. Now 1 को मुझे आगे लेके आना है, तो अब यहां पे क्या किया, 1 के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए 1 और 9 को इंटरचेंज कर दिया. 1 and 9 को इंटरचेंज कर दिया, बाकी सारे नंबर्स वहीं के वहीं थे. Now 1 will come at the place of 9 and 9 will go to the place of 1. बाकी सारे नंबर्स अनचेंज्ड हैं, बाकी सारे नंबर्स हिले भी नहीं हैं, अपनी जगह पे हैं, राइट? 1 और 9 को इंटरचेंज कर दिया. यहां पे हमने क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था स्पेस क्रिएट करने के लिए, बट यहां पे हमने क्या किया है, नंबर्स को स्वैप कर दिया. स्वैप करने का मतलब होता है इंटरचेंज करना, करेक्ट? ठीक है, 1 is replaced by 9 and 9 is replaced by 1. So 1 अपनी जगह पे आ गया. अब नेक्स्ट नंबर था 2. So 2 को आगे लेके आना है, तो 2 और 7 को इंटरचेंज कर दिया. So 1 and 2 अपनी जगह पे लग गए. अब मुझे 4 को आगे लेके आना है, तो 4 and 7 को इंटरचेंज कर दिया, राइट? एंड फाइनली 7 को आगे लेके आना है, तो 7 और 9 को इंटरचेंज कर दिया. डन. नाउ इन बोथ दीज एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन यू, हमारा पर्पस, फाइनल रिजल्ट वही था, बट द वे वी अचीव्ड दिस रिजल्ट इज टोटली डिफरेंट. ठीक है, तो यहां पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया यूजिंग शिफ्टिंग, एंड यहां पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया यूजिंग स्वैपिंग. हमने स्वैप किया नंबर्स को. ऑलराइट, am I clear to each and every one of you? Just write yes in the chat box if you are clear with this. Crystal clear. अरे great, thank you रुचि. स्नेहा, रुचि, परफेक्ट, ग्रेट. चलिए तो आगे चलते हैं, राइट? अब ये जो पैटर्न्स है नंबर्स में, हम किस किस तरीके से हम क्वेश्चंस को लाइक बेसिकली जो हमारा ये जो फाइनल आउटपुट है, यहां पे क्या क्या हो सकता है, और बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन, what can happen in these questions. So for a given input, the numbers can be arranged in increasing order or decreasing order, right? ठीक है, सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता था. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैंने सबसे छोटा नंबर सबसे आगे लगाया. और क्या हो सकता था,
दे वुड हैव सिलेक्टेड द लार्जेस्ट नंबर और उसको सबसे पीछे लगा सकते थे, राइट? सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद 1, मैं 9 से भी स्टार्ट कर सकता हूं एंड 9 को सबसे पीछे लगा दिया। तो फर्स्ट स्टेप में आई विल सेलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर एंड उसको सबसे पीछे लगा दिया, फिर सेकंड लार्जेस्ट नंबर उसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे लगाया एंड सो ऑन। ये भी हो सकता है, ठीक है? सो द मशीन में अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग आइदर शिफ्टिंग और स्वैपिंग, and it may start from the smallest number or it may start from the largest number. It may start from the first number, it may start from the last number as well. ठीक है? तो ये possibilities हो सकती हैं। Done. Also another thing that can happen here is जो भी इनपुट में नंबर्स है, लेट्स से इनपुट में जो नंबर्स है ऑल ऑफ देम आर 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है? So they may be arranged in increasing or decreasing order. They may also be arranged in increasing or decreasing order of the sum of the digits that they have. ठीक है? तो ये एक पैटर्न हो सकता है। Also they may use certain kind of arithmetic operators. जैसे मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था स्क्वायर। सो वो क्या कर सकते हैं, सारे नंबर्स जितने भी इनपुट में है सबको स्क्वायर कर दिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में सब में से 5 माइनस कर दिया। स्टेप 3 में सब में 10 ऐड कर दिया। स्टेप 4 में सबको 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज किए जा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है? सो दिस इज व्हेन द इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इनपुट जो है वो नंबर्स की फॉर्म में है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो हमें अपने दिमाग में रखना है कि भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप दिमाग में सिर्फ एक या दो पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो क्वेश्चन को शायद सॉल्व ना कर पाओ, बट इफ यू हैव ऑल दीज पॉसिबिलिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू थिंक यूजिंग अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, ठीक है? नाउ नंबर्स इनपुट होने की जगह वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, राइट? तो अगर वर्ड्स और अल्फाबेट्स हो सकते हैं तो उनको अल्फाबेटिकल और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। They can be arranged based on the number of alphabets in the word. तो सबसे छोटा वर्ड सबसे पहले आ गया। लेट्स से किसी एक वर्ड में एक ही अल्फाबेट है, उसको सबसे पहले लगा दिया। देन 2 अल्फाबेट्स हैं तो नेक्स्ट वो आ जाएगा। 3 अल्फाबेट, 4 अल्फाबेट एंड सो ऑन। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। ऑल्सो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे भी उनको हम अरेंज कर सकते हैं। डन। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। देन there may be a sequence in which there is a combination of alphabets and numbers or a combination of words and numbers, ठीक है? तो वो हम हायर लेवल पे जाके करेंगे। अभी फाउंडेशन क्लास है तो थोड़ा सा इसको बेसिक ही रखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया नंबर्स से रिलेटेड, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है? तो हमने एक बेसिक एग्जांपल तो कर ही लिया है। ओके, नाउ बेसिक एग्जांपल के बाद एक छोटा सा हायर लेवल का एग्जांपल करते हैं। सो ऑल ऑफ यू, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है आपको क्लियरली पता लग जाएगा, राइट? सो आर यू ऑल रेडी टू हैंडल दिस सेट, यस और नो? All right, perfect. So read this. A set of numbers when put through a machine comes out in a particular sequence. The table below, which has 6 steps, is given to you. Study the table and answer the questions that will follow. तो आराम से इस टेबल को स्टडी कर लो। आई एम गिविंग यू 3 to 4 minutes to study this table. And you are given that step number 6 is the final output. Okay, step number 6 is the final output. This is given to you. और मैं वहां पे लिख देता हूं, बेटर रहेगा। स्टेप नंबर 6
दिस स्टेप इज द फाइनल आउटपुट। तो जो मुझे रिजल्ट अचीव करना था वो मैंने अचीव कर लिया है एट स्टेप नंबर 6। सो ऑल ऑफ यू, रुचि बेटा ठीक है, गुड, बट कैसे? तो देखो रुचि, हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट हैज बीन डन, आपने आंसर कर दिया। हाउ इट हैज बीन डन, ये भी आंसर करना है आपको। ओके, सो एनालाइज ईच एंड एवरी स्टेप एंड देन टेल मी इफ यू आर डन टू हैंडल द क्वेश्चंस। ऑलराइट रुचि, रुचि और कुछ भी हुआ है यहां पे? ध्यान से देखो। ओके, ऑलराइट स्नेहा। ओके, रिश्विता, स्नेहा, रुचि एंड रिश्विता। ऑलराइट हितेश, हितेश ध्यान से, ध्यान से। सो हितेश, आई थिंक यू हैव गॉट द लॉजिक, बट एक बार इसको दोबारा से देख लो एंड टेल मी व्हाट हैज हैपेंड, टेल मी द कंप्लीट थिंग। ओके रिश्विता, चलिए स्टार्ट करें पैटर्न ऑब्जर्व करना, यस और नो, स्टार्ट करें डिस्कशन। सो बिफोर वी स्टार्ट द डिस्कशन, आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। Have a look at these questions and try to answer these. So if you think that you have got the logic, okay, so if you think that you have cracked the logic, let's answer these questions. So there are 4 questions. Question number 1 2 3 4, properly mujhe answers bata do. Just tell me which option numbers are the correct answers. ना हितेश, जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो उसमें क्वेश्चन नंबर भी लिख दो। सो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया तो राइट इट लाइक दिस 1D। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी, सो 1D। देन क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑप्शन, एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट हितेश, रिश्विता एंड स्नेहा। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी, ये 3 आंसर्स आए हैं। सो ऑप्शन ए, सी एंड डी, 3 आंसर्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
All right. So Ruchi says question number 2, option C is correct. And Hitesh says option B. So option B and option C. These are two answers. All right. Question number 3 for the sequence in previous question. So they are talking about the previous question, second question. For the sequence in previous question, in step 4, what will be the seventh number from the left? Okay, now Hitesh says option C for question number 3. Now, people, I'm giving you 1 more minute. I'm giving you 1 more minute. Okay, quickly finish it off so that we can begin with the discussion for this question. Jaldi finish karo. And Ruchi says option A for question number 3. All right, Ruchi. All right, last 30 seconds. Last 30 seconds for all of you. And Hitesh 4A. All right. ठीक है Hitesh. Rishwita, option C for question number 3, and Ruchi option A for question number 4. Okay, ठीक है. So done. Now I'm looking at the analysis of this set. So let's do the analysis. Let's understand what has happened in this machine. Now, what has happened? You have already answered this. So if I look at the input and the final step, it is clearly evident that all these numbers are in decreasing order. So largest number first and the smallest number at the end. Clear? Okay. So what this machine has done, this machine has arranged the given output, given input in the decreasing order. ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. Are you all clear with this? Yes or no? Perfect. You people are clear. Okay. अब देखते हैं किस तरीके से इस मशीन ने इनपुट से आउटपुट जनरेट किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इनपुट एंड क्या किया इस मशीन ने? So this machine first of all selected the largest number, okay, and the smallest number. Largest and smallest number को select किया, okay. If I'll go back, यही है ना? हाँ, ठीक है.
So this machine has selected the largest and the smallest number. लार्जेस्ट नंबर को इसने फर्स्ट पोजीशन पे लगाया एंड स्मॉलेस्ट नंबर को इसने लास्ट पोजीशन पे लगाया. ओके, राइट. ना लार्जेस्ट नंबर यहां पे है, बाकी नंबर्स एज इट इज, एंड स्मॉलेस्ट नंबर को यहां पे लेके गया. तो इस नंबर के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए बाकी सारे नंबर्स लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए. ओके, सो नाउ आई हैव इन स्टेप नंबर 1 the largest and the smallest number at its place. Out of the remaining numbers, then it determined the second largest and the second smallest. So second largest कौन सा है? 92. ये यहां पे आ जाएगा second place पे, and second smallest number 9 यहां पे आ जाएगा, right? So second largest number went to the second place. सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर वेंट टू द सेकेंड लास्ट प्लेस. इन नंबर्स के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? बाकी नंबर्स को शिफ्ट कर दिया. ओके, ठीक है. आर वी क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? ओके, सो अब क्या अरेंज हो गया? 99 एंड 92, 8 एंड 9, ये चार नंबर्स अरेंज हो गए हैं. सो एट एवरी स्टेप वी आर अरेंजिंग टू नंबर्स, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, then second largest, second smallest, third largest, third smallest, and so on at every step. Now step number 3 के लिए अब ये जो बीच वाले नंबर्स बचे हैं स्टेप 2 में बीच वाले नंबर्स बचे हैं, इनमें से अगेन थर्ड लार्जेस्ट नंबर एंड थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इनको पिक किया. 84 यहां पे आ गया एंड 17 इधर आ गया. So top 3 numbers and bottom 3 numbers are arranged. Okay. Now from the remaining number, इनमें से largest number क्या है? 77 and smallest number क्या है? 18. So 77 इधर आ गया, 18 इधर आ गया. तो first 4 numbers are set and last 4 numbers are set. ठीक है? Done. Now इसके बाद 68 will come here and 21 will come here. So first 5 numbers are set, last 5 numbers are set. अब फाइनल स्टेप पे 54 यहां पे आ जाएगा, 32 यहां पे आ जाएगा, and we are able to arrange all these numbers in descending order. Okay? Now the same rule will be applicable in these numbers. अब ये क्या बोल रहा है? If two new numbers 30 and 22 are added to the sequence, then the position of number 32 from left इन द लास्ट स्टेप. भाई ये दो नंबर्स और ऐड कर दिए हमने जो इनपुट था उसके अंदर. कौन कौन से नंबर्स? 30 एंड 22. आई एम सॉरी. सो 30 एंड 22. सो 30 एंड 22 कहां पे आ जाएंगे? 30 एंड 22 विल कम इन दिस गैप, 30 एंड 22, राइट? बिकॉज ये दोनों नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं. 30 32 से छोटा है, 22 21 से बड़ा है. तो ये दोनों नंबर्स फाइनल आउटपुट में इस पोजीशन पे आएंगे. ठीक है, राइट? सो फाइनल आउटपुट अब कैसा दिखेगा? 99 92 84 77 68 54 32 30 22 21. ये दो नंबर्स इंसर्ट हो गए, 18 17 9 एंड 8. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन द पोजीशन ऑफ नंबर 32 फ्रॉम लेफ्ट इन द लास्ट स्टेप. सो लास्ट स्टेप में 32 की पोजीशन क्या होगी? 32 की पोजीशन वही है 1 2 3 4 5 6 7. सेवेंथ पोजीशन विल बी ऑफ 32. ठीक है, डन. सो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन ए, सेवेंथ पोजीशन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, परफेक्ट. Now all of you be with me. ठीक है? Now the sequence is given as 24 28 37. This sequence is given, right? By putting the sequence in the same machine, what would be the third step in the sequence? हमें third step निकालना है. Third step निकालने के लिए देखना मैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. टाइम वेस्ट नहीं करना. It does not mean that you will have to write all the 3 steps. नहीं. सो फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 96. सबसे आगे आ जाएगा
ठीक है, एंड सबसे छोटा नंबर 11 लास्ट में चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज ओवर। ओके, बाकी सारे नंबर्स बीच में आ जाएंगे इन द सेम सीक्वेंस। डन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, भाई 96 से छोटा नंबर कौन है? 89। सो 89 यहां पे आ जाएगा, एंड 11 से बड़ा नंबर कौन सा है? 24। सो 24 इधर आ जाएगा। So there are two steps that have already been taken. ठीक है, so this will be step 2. बाकी बचे हुए नंबर्स बीच में आ जाएंगे। स्टेप 3, 89 से छोटा नंबर कौन सा है? 77। तो 77 यहां पे आ जाएगा, एंड 24 से बड़ा नंबर कौन सा है? मुझे तो 28 दिख रहा है, सो 28 यहां पे आ जाएगा। स्टेप 3 ओवर। बाकी अब जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनको एज इट इज लिख दो। 28, 37, नो सॉरी 28 तो मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। सो 77 एंड 28 ये दो नंबर्स तो जा चुके हैं। ठीक है, सो अब बचे हुए नंबर्स इन द सेम सीक्वेंस 37, 68, 48 and 54. All right. So this should be the complete step number 3 of our answer. So step 3 ये होगा। अब चेक कर लो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, that will be your answer. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? All right. So option C, Sneha, Ruchi, yes. So option C, 96, 89, 77, 37, 68, 48, 54. Absolutely. So option C is matching with this sequence. Okay? ठीक है ना? डन। चलिए, नाउ फॉर द सीक्वेंस इन द प्रीवियस क्वेश्चन इन स्टेप 4, अब स्टेप 4 रिक्वायर्ड है मुझे, तो वापस चलते हैं और एक स्टेप और लिख देते हैं। सो वी हैव द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में फर्स्ट 3 नंबर्स एंड लास्ट 3 नंबर्स अरेंज हो गए थे। सो 96, 89, 77 and last 3 numbers 28, 24 and 11, ये सब अरेंज था। बचे हुए नंबर्स में से अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, तो बचे हुए नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर है 68, तो 68 यहां पे आ जाएगा, दिस इज गॉन, एंड इनमें से सबसे छोटा नंबर है 37, ये यहां पे आ जाएगा। तो 68 चला गया, 37 चला गया, बाकी के दो नंबर्स इन द सेम ऑर्डर 48 and 54 इन द सेम ऑर्डर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप हो गया? स्टेप नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्हाट विल बी द 7th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट? सो इन स्टेप नंबर 4 व्हाट विल बी द 7th नंबर फ्रॉम द लेफ्ट? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो 7th number from the left is 37. So option A 37 is the correct answer. ठीक है, last question of the day. What would be the middle term of the following sequence in the final step? अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। After it is put through the same machine. अब मशीन का काम क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, और मुझे फाइनल स्टेप ही निकालना है, मुझे पहले के स्टेप्स तो निकालने नहीं है, मुझे तो फाइनल स्टेप निकालना है। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको काउंट कर लो, उसमें से मिडिल टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स हैं, 9 नंबर्स हैं। तो कैन आई से दैट मिडिल टर्म विल बी द 5th टर्म when all these numbers are arranged in decreasing order. So decreasing order में अरेंज करना है तो कर लो, नहीं करना आपकी मर्जी है। ऐसे ही देख लो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? सबसे बड़ा नंबर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहा हूं, मुझे 5th टर्म देखनी है। तो सबसे बड़ा नंबर 96, उसके बाद कौन है? 54, सेकेंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर हो गया। अब 5th नंबर कौन सा होगा? 26। So the correct answer should be 26. That is option A. All right. So middle term
9 numbers थे, 9 numbers में fifth term will be the middle term, and hence I'll calculate the fifth term when the given numbers are arranged in descending order, and that's how I got the answer. ठीक है? So friends, that's all from my side today. तो आज हमने क्या देखा? आज हमने इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस के कुछ टाइप के क्वेश्चंस देखे, and primarily we focused on the type of questions where the input is given in the form of numbers. Okay, right? So understand this topic, and topic बहुत ही interesting है, थोड़ा सा difficult है. difficulty level बस इतना ही है यार कि वो जो pattern है ना, हो क्या रहा है वो determine करना. So what is being happening and how it is being happened, हमें यही दो चीजें फाइंड आउट करनी है, what and how. इन दोनों चीजों के आंसर्स मिलने के साथ ही ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है? सो थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी थरो विद दिस टॉपिक. ओके, नाउ रुचि सर, आईपीमेट मास्टर क्वेस्ट बैच में लेक्चर डिटेल्स में होंगे या आईपीमेट मास्टर क्वेस्ट में लेक्चर डिटेल्स में ही होंगे. ठीक है, फाइन. सो मास्टर क्वेस्ट जो बैच है उसमें हर चीज प्रॉपरली आपको सिखाई जाएगी, राइट, इन डिटेल. ऑल राइट रुचि, आई होप यू वर आस्किंग द सेम थिंग. ओके, ऑल राइट. So friends, that's all from my side. I'll see you in the next week, continuing this series of sessions in IPMAT Foundation for all the students who are preparing for 2026. All the very best. Have a nice time. See you again. Bye-bye.